Please give a big round of applause for Shuja Haider. तू समझ जाए गर वजह अपने वजूद की, झूम जाए कल्ब तेरा हो कसरत सजूद की। मेरा कोई गाना नहीं है जो मैंने किसी से लिखवाया। मैंने लिखा है अल्लाह अकबर तू रब्बे मुस्तफा। आर्टिस्ट वो नहीं होता जो सिर्फ गाना गाता, वो सिंगर होता। सिंगर होता। मुझे तू आज़मा जहान से जहां, मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा, निगाह ख्वाब की जुनू है बेपना, मेरा ये जोश दे सदा मैं उड़ा हो। Wow! Sorry, we have a special audience member here today, Narco, so I'm scared that she'll run off. Welcome to After Hours, everyone. Today is a very special, actually every episode is very, very special. We always have very special guests. लेकिन जो आज के मेहमान हैं, वो हमारे unsung heroes में से हैं. जब हम music की बात करते हैं, तो music is in our hearts, in our souls, you know, everything is musical, the universe is musical, everything runs on sound vibrations. So music हमारी ज़िंदगियों का एक integral part है, हमारी खुशी का, हमारे गम का। मेरी ज़िंदगी में तो हमेशा एक OST चल रहा होता है, मेरी ज़िंदगी का एक soundtrack चल रहा होता है, depending on what I'm listening to. And जो musicians होते हैं, उनके कुछ stars होते हैं जो foreground में बहुत ज़्यादा होते हैं. They're the obvious stars, you know, the big singers that you see, the pop stars, and you know all about them. Then there are some musicians, and of course it takes a village, जैसे हमारी film industry में भी, it takes a village to make a project. But there's some musicians who are sort of the backbone of the industry. He's a singer, people know him, everybody knows him, but what he's created, a lot of people don't know. He's the man behind so many of our favorite albums, our favorite OSTs. Balki, you know what? Let me introduce him and then I'll read out all that he's done and you'll be shocked. And it's a very exciting time to be able to talk to him and discuss music with him because he's one of those people that know the industry inside and out. Please give a big round of applause for Shuja Haider. Assalamu alaikum. How are you? Welcome to the show. Please have a seat. Shuja, आप बहुत कम interviews करते हैं, so thank you so much for joining me Pleasure. on this show. Acha, I have to make a list now of all that you've done because, you know, again, aap music videos mein nahi samne forefront pe hote hain. So a lot of people don't know the things you're behind. थोड़ी सी research हमने की हुई है, बाकी आप खुद बताएं. You have produced हारून की जो पहली solo album थी. You're the producer of that. Yeah. फिर आपने the first single तेरा वो प्यार, अच्छा forget that. OSTs की बात करते हैं because I am an actress. You've done Baghi, Man Mayal, Alif. You've composed music for Khuda Ke Liye, Bol, and how many other movies? So many actually. So many. I don't even remember. But I, yeah, a lot of Teri movies. Meri Kahaniyan. Yeah. Neem Se Mohabbat के lyrics आपने लिखे हैं? I made that song. You made that song also. Song, yeah. My God, you sang and now I hear composed one of my favorite Pakistani film songs, Aaya Ladiye, जिसमें एक शादी पे dance भी किया था. Yeah, I love that song. I still listen to it. I remember that first cut जो हमारे पास आया था ना, उसमें फहद था. Yeah. I wasn't in that. नहीं वो जो एक आया था कट जिसमें बहुत सारे लोग थे and that was not official or official. Right. You were there. अच्छा, was I? It's just what an illustrious career, mashallah. And मतलब लोगों को पता नहीं कि हम कितने गाने सुनते हुए आ रहे हैं जिनके पीछे आप हैं. So let's. बहुत सारे हैं. Very shy also. So let's talk about your journey. आप लाहौर से हैं. You're from Taksali Gate. टक्साली गेट में एक इलाका है उसको कहते हैं मोनी रोड. मोनी रोड. और मुझे आज पता चला कि उमैर जसवाल हमारी गली के पीछे रहते थे मोनी रोड में. वो लोग इस्लामाबाद से नहीं? जहाँ पे नहीं, पहले लाहौर में भी थे, जहाँ पे पीर मक्की जो दाता साहब के बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक और मज़ार है, उसमें कहते हैं पीर मक्की. अच्छा. पीर मक्की के बिल्कुल पीछे हमारा भी घर है था और इनका भी घर था, तो वहाँ पे इतने सारे लोग रह रहे थे, हमें पता नहीं था. बहुत सारे म्यूजिशियंस आर फ्रॉम
that area, that particular part of the city. उसका बहुत अजीब सा बैकग्राउंड है, बिकॉज हम भी कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सारे जो फिक्रमंद लोग होते हैं, जो फिक्र रखते हैं आर्ट से और क्रिएटिविटी पे वो बहुत बिलीव करते हैं, सारे वहीं से ज़्यादा सारे वहीं से है. And Lahore generally is a very creative city. It's a beautiful city. आप अभी मैं आपसे बात कर रही थी और मैं कंप्लेन कर रही थी कि काश मैं गा सकती, और आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको आता हो पहले से. You can also learn. But आपको तो पहले से आता था सब कुछ. You didn't take any formal training. Your grandfather was a renowned pianist. And that's how you learned playing? Yeah, actually मेरी फैमिली की हिस्ट्री रही है म्यूजिकल, अम्मी की तरफ से भी. अम्मी की तरफ से क्या? क्योंकि वो पोती हैं मियाँ मीरा बख्श साहब की, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के उस्ताद हैं, जो उस्ताद जाकिर हुसैन के वालिद हैं. Oh wow, okay. So he's teacher. और फिर मेरे ग्रैंडफादर he was a pianist. तो ये पूरा एक खिचड़ी पक गई और मैं बन गया. खिचड़ी पक गई और आप बन गए. तो when did you decide कि अच्छा अब मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आए? क्योंकि पहले तो आप एल्बम्स, पॉप एल्बम्स बना रहे थे, कंपोज कर रहे थे, और फिर आप OSTs में आ गए. How did that transition happen? यार OSTs मेरे लिए कोई जॉनरा कुछ चीज़ नहीं होती. मेरे लिए सिर्फ गाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. मुझे लगता है कि गाना ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों तक जाए और लोगों को अच्छा लगे, लोग रिलेट कर सकें, एंजॉय कर सकें. बाद में पता चलता है कि OST है, या बाद में पता चलता है फिल्म सॉन्ग. फॉर एग्जांपल अब तेरी मेरी कहानी एक फिल्म आई थी, तो उनके जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने मुझे कहानी को इतनी सुनाई नहीं. नदीम बेग के मैंने कहानी को सुनाई नहीं. उन्होंने बोला कि यार बस बना दे गाना यार, वो हमारी को अंडरस्टैंडिंग. हम एक दफा देख लेते हम देख लेते तो हमें पता चलता है कि बेसिकली क्या हो रहा है. सो वो दे वर डूइंग देयर ओन थिंग, आई वाज जस्ट राइटिंग द सॉन्ग और मैं गा रहा था. जब फिल्म आई तो एक एक लफ्ज बैठा हुआ था उसकी पूरी कहानी पे. It just worked. Yeah, it just worked, and I think the practice हो जाती है कि हम समझ लेते हैं. कि आप समझ लेते हैं practice. And do you enjoy doing OSTs for dramas? Because इस वक्त dramas इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कि जितनी दुनिया देखती है शायद फिल्म नहीं देखती पाकिस्तान में उस तरह से. So जब म्यूजिक आपके एक OST घर घर में दिन के 12 दफ़ा बज रहा होता है, so do you get a lot of feedback from it? या लोगों को पता भी होता है कि आप हैं? हाँ पता होता है, क्यों नहीं पता होता. बेसिकली क्या होता है कि अभी मीम से मोहब्बत जो किया था मैंने, तो ये कुछ 3-4 घंटे में किया. मैंने कहा आसिम आ जा जल्दी से. आसिम ने आके वोकल कर दिया. मेरी बेटी को मैंने बोला कि तुम लड़की वाला पार्ट गा दो. अच्छा, आपकी बेटी भी गाती है? मेरी बेटी ने गाया. that was her debut song. Oh, माशाल्लाह. तो उसने आके वो गाया. It's just like 5-6 hours. और एक for me it was just another song. Wow. लेकिन वो बाद में लोगों को इतना अच्छा लगा. कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं, और वो बहुत म्यूजिक इतना प्रेवलेंट है कि कभी-कभी एक ड्रामे को उसका OST ही उठा लेता है. You know, it's such a beautiful cycle of music and everything else. I'm going to take a question from our audience really quickly. किसका है पहला सवाल? हाँ जी, पूछिए आप. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि आप लिरिक्स पे भी काम करते हैं, पहले मेलोडी आती है या लव्स? पहले तो सवाल पे दाद देता हूँ आपको. ये सवाल अगर हमारे बच्चे पूछना शुरू कर देना तो हमारे बच्चे बहुत आगे चले जाएंगे, बिकॉज ये बड़े टेक्निकल सवाल और आपको पता होना चाहिए. देखो, डिपेंड करता है. मौसीकी में एक चीज़ कहलाती है वज़न. तो कभी कभी ऐसा होता है कि गाना शायरी हुई होती है और हम उसके ऊपर बनाते हैं, लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं होता. मेलोडी जो कंपोजर होता है ना, जो भी चीज़ उसको इंस्पायर करती है उसी पे पहले काम करता है. इफ़ द वर्ड्स आर रियली गुड, वो लिखता रहेगा. अगर उसकी मेलोडी धुन बहुत अच्छी तो पहले धुन को कंप्लीट करेगा, फिर धुन के ऊपर उसको लिरिक्स बिठाएगा या लिरिक्स के ऊपर धुन को बिठाएगा. सो इट डिपेंड्स कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आपको क्या चीज़ इंस्पायर कर रही है. So that depends a lot on what has inspired you to write. What inspires you? What do you like to do first? मुझे रियलिटी, मेरी अगर कोई भी देखो, फॉर एग्जांपल अलिफ मैंने किया था ना कि अलिफ तू समझ जाए गर वजह अपने वजूद की, झूम जाए कल्ब तेरा हो कसरत सजूद की. सो ये एंड ऑल माई कोक स्टूडियो सॉन्ग्स, मेरा कोई गाना नहीं है जो मैंने किसी से लिखवाया. मेरे वो गाने मैंने लिखा है. अल्लाह अकबर इट्स वन ऑफ मोस्ट कोक स्टूडियो का बहुत ही. Which one? How does it go? अल्लाह अकबर शफकत उमर से गवाया था मैंने और अहमद से. तू रब्बे मुस्तफ़ा. सो ये भी लिखा, लेकिन ये होता पता है क्या, ये बड़ी अजीब प्रैक्टिस है उष्णा, कि शायरी आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है. मैं इंडिया बॉम्बे में था 2007 में, तो हम जहाज़ उड़ा बॉम्बे से. तो मैं कहता हूँ, मैंने कहा अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर. वो 2-3 साथ में पैसेंजर घबरा गए बेचारे. तो मैंने कहा यार ये क्यों घबराया.
कि उड़ते हुए जहाज में ऊंचा नहीं कहना चाहिए। ये अल्लाह अकबर का कुछ मतलब समझ भी नहीं रहे हैं। या तो मैंने फिर मुझे जब कोक स्टूडियो का प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने वहाँ पर फिर अल्लाह अकबर उसको आपने गाना बना। इट्स इंटरेस्टिंग कि आप उड़ते जहाज की बात कर रहे हैं एंड इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। मैंने आई थिंक इट वाज लैरी गिब या कौन सा बीजीज का कोई एक सिंगर था तीनों भाइयों में से एक, एंड आई हैव वन ऑफ माई फेवरेट बीजी सॉन्ग्स इज आई स्टार्टेड अ जोक, और उसकी जो मेलोडी है वो जहाज में बैठा हुआ था। सो उस जमाने में जो पुराने जहाज़ों का वो नहीं होता था इंजन, इट वुड मेक दिस साउंड लाइक उससे he got inspired by the melody and then the words came. So it can just come from anywhere. You see, जिस तरह वो Ratatouille का एक डायलॉग है, not everyone can become an artist, but an artist can come from anywhere. Yes. तो वो म्यूजिक का भी यही है, शायरी का भी यही कि किसी वक्त कब हो जाए। मैं ट्रिम कर रहा था तो मुझे लगा कि ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, राइट? Oof, I love that. तो वो मैं फौरन अपना वॉइस नोट निकाला, कर दिया, कोई नमाज जी कर दिया। उसके बाद स्टूडियो गया, मैंने अपने आप को वो कंप्यूटर में डाला, मैंने कहा गाने में पोटेंशियल है, अच्छा गाना है, यू नो। Then I recorded the original track. उसके बाद फिर मैंने कोक में आसिम से और मुन्ना से गाया। You know, you're very lucky because आपकी आर्ट बहुत ज़्यादा लोगों पे रिलाई नहीं करती है। You know, usually because it's such a collaborative field, आपको lyricist अलग चाहिए होता है, composer अलग चाहिए होता है, singer अलग चाहिए होता है। You can sort of be a one man army कि आप उसी वक्त अपना खुद ही बना लो, तो आप बल्कि पैसे भी बच सकते हैं in that sense आपके अपने ही, because you don't need a lyricist, you don't even need a singer, you're just एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं कहूँ, और मैं चाहूँगा कि ये बहुत तवील बात है लेकिन मैं उसको बहुत छोटा करके बताता हूँ और आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए भी। आर्टिस्ट वो नहीं होता जो सिर्फ गाना गाता। आर्टिस्ट जो गाना गाता है वो आर्टिस्ट नहीं होता, वो सिंगर होता। सिंगर होता। there you go. आर्टिस्ट वो होता है जो गाना बनाता है। आर्टिस्ट वो होता है जो गाना पूरा डिजाइन करता है उसको। सिंगर क्या होता है? सिंगर इज जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, इफ यू डोंट प्ले इट, इट वोंट क्रिएट एनी साउंड, इट्स यूजलेस. So you need that person who knows how to play that keyboard, the piano. Right. So I think like I'm not calling myself an artist. You're not. लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी करूँ तो अपना करूँ. Yeah. मेरा ख्याल है, ये मेरा दर्द है, ये मेरी खुशी है, मैं ही लिखूंगा. मनमायल was like कि जब मनमायल में वो भाभी नीचे थी, ये हसीब लोग नीचे थे, and I was going through some serious problem at that time, some personal stuff. So I was just driving around DHA. तो मुझे पता नहीं था कि ये लोग मेरे पास से गाना सुनने आने वाले हैं. तो सडनली हसीब कॉल भी करके वो आ रहे हैं, आ गए, पहुंच गए. मैंने कहा मैंने तो गाना तैयार नहीं किया अभी तक. तो उन 15 मिनट में मैं अपने स्टूडियो की बिल्डिंग के बैक डोर से गया ऊपर, माइक लगाया और मैंने फिर मेलोडी बनाई. चार चपेड़े आए चक चक गलियां, और उसी में मैंने लिख भी लिया 15 मिनट्स. उसके बाद ये लोग ऊपर आए, इन्होंने गाना सुना, मैं प्ले करके मैं बाथरूम में चला गया. बाथरूम में अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ. मैंने कहा शिट यार, ये मैंने क्या कर दिया. बाहर आया तो ये लोग वीडियो की बातें कर रहे थे. Oh my God. That's amazing. You know, I want to talk about this a bit more because most artists, myself included, we suffer from a lot of blocks. Writer's block हो गया, वो block हो गया. Looks like Allah is very kind with you कि 15 मिनट में आप इतनी hits बना रहे हैं. So I want to talk about this, guys. Don't go anywhere. We'll be right back. Abhi, can you repeat what you just said? You said something about songs being a revelation. हाँ, गाना बेसिकली कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं है दुनिया में. अगर परिंदे ना होते तो हम जहाज नहीं बना पाते. हमें किसी न किसी चीज़ ने इंस्पायर किया है तो हमने तरक्की भी की है, राइट? सो तो वो जो म्यूजिक हम लोग गाने बनाते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं होते हैं. वो एक गाना, उसकी मेलोडी है, एक पार्ट उसका है. इट्स लाइक अ ड्रीम, स्कैटर्ड ड्रीम, थॉट्स. कंपोजर उसको कंपोज कर लेता है, उसको डिजाइन दे देता है. या But sometimes, but not that's a wordly practice. Yeah. Sometimes you just आप एक काम करो, आप साइकिल की चेन ठीक कर रहे हो और कुछ आ गया तो मेरे लिए वो ऐसा लगता है कि वो किसी ने भेजा आपको. It's like a revelation. You said. It's like a revelation. You have to receive it. You have to be able to receive it and use it properly. तो वो आर्ट है. You know, मैंने एक लिखा था कि अल्लाह मियाँ दूध बांटते हैं, 4 किलो सबको दे रहे हैं, 4 किलो सबको दे रहे हैं.
आप एक कप लेके पहुंच गए, मुझे 4 किलो दूध चाहिए। नो, आपका ज़र्फ बड़ा होना चाहिए, आपका पैमाना बड़ा होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना 4 किलो दूध बांट रहा है, वरना वो सारा दूध जाया हो जाएगा। It's a beautiful So way you to have put to it. have that zarf Yeah. to receive that revelation, This right? is reminding me of this Tupac line. Do you like Tupac? Yeah. Are you into rap? Yeah. There's this song. It's a artist who's passed away many years ago, and he goes, he's a rapper, one of the greatest who's ever lived, and he goes, I feel his hand on my brain when I write rhymes. I go blind and let the Lord do His thing, which I thought was really cool because an artist going in a trance and just receiving. I'm trying to receive, Lord. Where are you? Give me some inspiration. So there's inspiration in everyone. Many people are your fans. Are you a fan of somebody musically? A lot of people, but like John Williams, Henry Mancini, the Pink Panther. That was iconic. Panther, yeah. I liked ABBA a lot. ABBA. ABBA and From a scoring perspective, anybody you really like? I like Hans Zimmer. Hans Zimmer, of course. Crazy. वो जो थीम उसने बनाया टम 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 लाइक Interstellar. हाँ इंटरस्टेलर. Oh my God. उसने पूरे टाइम को उसने एक जगह पे जमा कर दिया. It's just 3 notes. It's just so beautiful. It is so magical. Acha, you've grown up in a musical household, obviously, and you've met with a lot of the greats. So do you have any memories of Madam Noor Jahan or Ustad Nusrat Fateh Ali Khan? खान साहब के साथ भी मैं बचपन की मेमोरी है. खान साहब कंपोज कर रहे थे और मतलब क्या कह रहे हैं? नुसरत फतेह अली खान पाकिस्तान को जितना फख्र करना चाहिए उतना काम है. सो खान साहब के लिए प्लीज रखिए. Oh my God. You've seen him compose? Yeah. Oh my God, tell me about this. Scheme Mode. There was this studio in Lahore, Scheme Mode में. मैं गई नहीं उनके स्टूडियो में, वहाँ रेडियो शो करती थी मामा के साथ. अच्छा. उनका और एक वो जो दूसरे हैं उनका नाम भूल. So वो अपने हारमोनियम में बैठे हुए थे तो बहुत सारे पेपर पाजे के ऊपर पड़े हुए थे तो वो उन सब और वो जितने गाने जो पहला एल्बम था जो जम मस्क कलंदर जो था उसमें क्योंकि मेरी फैमिली भी they were the musicians, one of those. आप तो बहुत छोटे होते होंगे. बहुत छोटा था. So हम लोग वहाँ पे हमें ले जाते थे तो मैंने देखा कि वो गाने और सारे गाने उतना सब यार होते हैं कि 2 तुक्के लग जाते हैं. 1 तुक्का 2 4 तुक्के. वो भाई 12 के 12 गाने सुपर डुपर हिट. Yeah. It's crazy. It's insane. It's crazy. तो खान साहब नुसरत फतेह अली खान बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए. So you saw him compose? मैडम जी को भी देखा मैंने गाते हुए. बहुत छोटा था तो आई थी. But on one of those days when she was almost done. Oh, it was much later. लेकिन उस वक्त भी वो. And I'm also the last. मैंने सबसे आखिर में मैंने रिकॉर्ड किया रेशमा जी को भी. उनका सबसे लास्ट जिंदगी का सेशन. I did that for Lux Awards. लंबी जुदाई जब उन्होंने आतिफ के साथ गाया. I produced that. लंबी जुदाई and all the Lux music. Yeah, that was my. Wow, look at this career, mashallah, guys, give it up for Shubha. That's amazing. So क्योंकि आपने उस ज़माने के भी आर्टिस्ट देखे हैं और उस ज़माने की कंपोजिशन जो थी was an analog ज़माना also. मतलब I know कि 50s 60s का जो म्यूजिक था, I'm not sure about 80s 90s, was कि you had to record in one go. So I'm not sure if यहाँ भी अब everything is digital. So आपने आर्टिस्ट में शिफ्ट देखा, टैलेंट में शिफ्ट देखा क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी आसान हो गई, ऑटो ट्यून आ गया है. अब तवील बात है लेकिन बड़ी अजीब बात है. करें? हाँ, मैं देखो दो तरह की क्रिएटिविटी होती है. 2 तरह की क्रिएटिविटीज होती है. क्रिएटिविटी होती है एक मादे से मादा पता है क्या होता है? मटीरियल. मैं हूँ मादा और एक दरख्त भी मादा है, मैं उससे कुर्सी बनाता हूँ. ओके, तो हम मादे से मादा पैदा हो जाता है, शादी होती है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो 2 मादा से हो गया. लेकिन एक होता है आपके अंदर एक और भी एनर्जी है, इसको कहते हैं हम रूह. वो भी क्रिएट करती है. वो क्या क्रिएट करती है? सो जो रूह खल्क करती है ना वो हमेशा रहता है क्योंकि द रूह इज द एसेंस ऑफ अल्लाह ताला. इट विल ऑलवेज स्टे देयर, इट विल नेवर डाई. बट जो आपकी सिर्फ बॉडी क्रिएट करती है ना वो 2-3 महीने में खत्म हो जाता है. आज भी वो गाने जो आप सुनते हो कहते हो कि यार ये गाना कितना मजे का है यार, ये कभी हमेशा जवान रहता है. वो जिस्मों ने नहीं बनाया है, वो रूहों ने बनाया है. अरे वाह, तभी जिंदा है. Because that's the essence of Allah subhanahu wa ta'ala. You see anything that has innocence in it, purity in it. तो आजकल एक चीज मिस हो गई है
प्योरिटी खत्म हो गई है। हमारे जज्बात बहुत मुफाद परस्त लोग हैं, सेल्फिश हो चुके हैं। हम दूसरों का बहुत बाद में सोचते हैं, पहले अपना सोचते हैं, दिस इज ओके। बट आई डोंट थिंक इससे हमारी क्रिएटिविटी बहुत असर होती है। आपको बहुत अनकंडीशनल लव देना पड़ता है, पैशन देना पड़ता है फॉर टू व्हाट यू डूइंग। इज दिस व्हाई कई दफ़ा आर्टिस्ट आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट द वीकेंड, हु स्टिल अमेजिंग, बट आई प्रेफर, मैनी पीपल प्रेफर हिज वर्क बिफोर ही गॉट साइंड, जो उनकी मिक्स टेप्स और वो, क्योंकि दे वर आउट ऑफ पैशन, एंड जैसे जैसे म्यूजिक कमर्शलाइज होने लग गया, आई फेल्ट लाइक द रू got taken away. Is that the reason? Yeah, that's the reason. That when people आर्टिस्ट को जैसे एक्सपोजर मिलता है ना, तो वो बहुत ही खतरनाक एक्सपोजर होता है। अब मैं अगर मुंह के ऊपर लाइट खींचता रहूं तो वो आपको थोड़ी देर में आप बंदे हो जाएंगे। आपकी एनालॉजीज बड़े मजे की होती हैं। I love it. तो लेट्स जस्ट इसको इतना डिस्टेंस में होना चाहिए कि आप अंधे ना हो, एटलीस्ट हो, टेक एंजॉय ऑल द कंफर्ट और लग्जरी एंड जितना भी आपको जो करें, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं म्याना रवि होना चाहिए। जब वो दूर हो जाता है ना, तो फिर आप अल्लाह से भी कट जाते हो, अपने आप से भी, खुद से भी कट जाते हो। कुछ ऐसे लोग पाकिस्तान से भारत में हिजरत किया, अच्छा, कि जो अपने काम के बहुत बड़े लोग थे। उनमें से जो मेरे फेवरेट हैं, जो मेरे गुरु उस्ताद हैं, जो मैं समझता हूँ, वो आनंद बख्शी साहब हैं, कि जिन्होंने वो हिजरत करके वहाँ गए। He was from पिंडी। हाँ यार, पिंडी के हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब तो हमारे इलाके के हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, He's लाहौरी? अंदरून शहर के हैं। अरे no, but what about the modern artists जो आज हमारे पॉप स्टार्स हैं? बाबा बहुत मुश्किल है। नो, मुझे नहीं दिख रहा वो कनेक्शन। मुझे लग रहा है कि हाँ एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन पास नहीं रख रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। मैंने घर में सजाया नहीं उसको। अभी I agree with you in the sense कि कोई अच्छा गाना आता है तो मैं उसको इतना रीप्ले कर लेती हूँ कि उसके एंडोर्फिन सारे निचोड़ के फिर दिल नहीं चाहता उसको दोबारा सुनूं। बट बहुत कम गाने ऐसे हैं जो बस रहें, दैट यू कैन प्ले 7 years later, 6 months later एंड दे स्टे। वो बॉडीज ऑफ वर्क बहुत कम हो रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद सम ऑफ द वर्क जो अभी जुल्फी ने किया है विद कोक स्टूडियो, जो कुछ करंट सॉन्ग्स बड़े मजे के इन द पास्ट हैव कम, बट ओवरऑल आई थिंक इज लैकिंग। बट व्हाट डू यू फील कि जो पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री, पॉप म्यूजिक अब फिर से जरा इंटरनेशनल लेवल पे वापस आने लग गया? फॉर एग्जाम्पल कोक स्टूडियो ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी रिकग्निशन मिली है। सो डू यू थिंक एक एरा पॉप म्यूजिक अब आने वाला है जो हमें दोबारा से उठाए? उष्णा, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी पॉप हमेशा टॉप ऑफ द गेम ही रहा है। इवन पुराने वक्तों में भी पाकिस्तानी पॉप और बॉलीवुड ही दो अलग अलग चीजें रही। आई फेल्ट लाइक हमारे रॉक बैंड्स के जमाने के बाद थोड़ा सा मेरे पर्सनल टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा गिर गया। आई फील लाइक द आतिफ जल, दैट एरा वाज काइंड ऑफ द लास्ट रॉक। फिर बीच में एक गैप आया जहाँ मुझे मजे के नहीं लग रहे थे गाने, मुझे सारे तराने लग रहे थे। नहीं, वो गैप पता है क्या था बताऊं? म्यूजिक हो रहा था, लेकिन उस वक्त हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो गई थी हमारे मीडिया की। That was totally news. Okay. And I know आप कब की बात कर रहे हो। तो उस वक्त आर्टिस्ट बनाते, मेरे पास इतनी एल्बम्स पड़ी होती जो एल्बम डब्बा हो गई सारी की सारी। अच्छा। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तानी म्यूजिक को खरीद नहीं रहा था। ये नहीं था कि म्यूजिशियंस गाना नहीं बना रहे थे, खरीद नहीं रहा था, कोई खरीद ही नहीं रहा था। स्ट्रीमिंग हैज चेंज्ड, कोई पजीरा ही नहीं थी। So that's what वो आप उस जमाने की बात कर रहे हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमारा पॉप म्यूजिक, हमारा इंडी म्यूजिक हमेशा हर जगह पसंद किया गया। So we have some of the best artists. We have to take a short break. We'll be right back. Don't go anywhere. शुजा, आजकल मुल्क जो है हमारा बहुत पेट्रियाटिक हुआ है, rightfully so, especially for our Air Force. And you've written and composed a song called मैं उड़ा। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। हाँ, वो बेसिकली मैंने गाना गाया था उसके लिए, प्रभात जनों के लिए। अच्छा। फिल्म थी। आई डिड दैट सॉन्ग इन 2019। सो उस वक्त तो अच्छा लगा था लोगों को, लेकिन अभी मैं जब ये जंग वाला सीन हुआ तो रात को मैं जल्दी सो गया, सुबह उठा तो पता चला इतने ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ टैग्स। मैंने कहा रात को क्या कुछ वायरल तो नहीं होगी मेरी कुछ चीज़, क्या हो गया ऐसा सडनली, बिकॉज इतना माई सॉन्ग वाज ट्रेंडिंग नंबर 1 throughout this. Yeah. Do you feel proud कि इतने इम्पोर्टेंट टाइम में आपका गाना यूज हो रहा है? कुछ गाने हैं जो आइकॉनिक हो जाते हैं हमारे मुल्क के साथ, जैसे दिल दिल पाकिस्तान एंड जज्बा जुनून एंड नाउ योर्स। माशाल्लाह, so that's great. I'm really happy for you. Fantastic.
Achha, so out of all the, I'm going to ask you vocally. You've worked with so many singers, from QB to Aima. Whose voice do you enjoy the most? या who do you like working with the most? एक होता है एक artist and composer की mentality थोड़ी मिल जाती है. मेरा ऑनेस्टली बहुत बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक मैं जवाब नहीं दूंगा इसका. मेरा काम करने का तरीका ही ऐसा है कि मुझे कभी ये सोचना पड़ता है कि मेरा फेवरेट कौन है. बिकॉज जब मैं मेलोडी बनाता हूँ तो मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने आयमा से गवाना है तो मैं वो गाना स्पेसिफिकली आयमा के लिए ही बनाऊंगा. और अगर मुझे क्यूबी चाहिए तो मैं क्यूबी को सामने रखते हुए गाना बनाऊंगा. सो कंपोजर लुक एट इट वेरी डिफरेंटली. Okay. इट्स नॉट लाइक कि प्लान ही नहीं था तो 5-6 सिंगर आपने ट्राई किया, ऐसा होता नहीं है. Okay. बहुत सारे ऐसे गाने हैं कि जो गलत लोगों से गवा लेते हैं आपको मेलोडी कुछ और कह रही होती है, लेकिन मैं बहुत स्पेसिफिक उस मामले में. सो या जिसने भी मेरे गाने गाए बहुत अच्छे गाए. एंड आप नए टैलेंट को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं? एब्सोल्युटली. आपने कभी किसी को इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्री में? समवन न्यू? अब वो बहुत बड़े हो गए. कौन? बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे लोग हैं. That have started with you? बहुत सारे. या अच्छा. And what would you say to singers जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? आए सीख कर रहे हैं. सिर्फ ये काफ़ी नहीं कि मुझे शौक है. Okay. ये काफ़ी नहीं कि आई लव म्यूज़िक. प्यार करना म्यूज़िक से बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीखना नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि आप प्यार नहीं करते हो. आप अपने आप से प्यार करते हो. आपको कुछ अपनी नीड पूरी करनी है. यू नो व्हेन यू वांट टू लर्न इट, जब आप लर्न करोगे ना तो फिर जाके आपको ये फायदा हो. आप जब सीखने की बात करते हैं तो इसमें इज इट जस्ट लर्निंग, एक्सपैंडिंग योर वोकल रेंज, या और भी है म्यूजिक में चीज़ें? जैसे मैंने नोट किया बहुत सारे अच्छे सिंगर्स के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं गाने में. सो क्या टेक्निकलिटीज हैं जो आनी चाहिए एक सिंगर को, स्पेशली प्लेबैक सिंगर को? स्केल्स का पता होना चाहिए, अपनी वोकल रेंज का पता होना चाहिए, अपने स्टाइल का पता होना चाहिए, ब्रेथ कंट्रोल का पता होना चाहिए. बिकॉज बहुत सारे लोग वैसे तो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जैसे वोकल बूथ में जाते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है. वो रिकॉर्ड बटन दबता है तो वो शट डाउन हो जाता है. Really? क्योंकि वो बाहर ज़्यादा गाते हैं. तो वोकल बूथ का एक अलग एक्सपीरियंस है. तो सीखने का मतलब ये होता है कि अपनी प्रैक्टिस जो तुम कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप गलती करते हो, मिस्टेक करते हो, सीखते रहो और आइंदा उसको रिपीट करने की कोशिश ना करो. बस ये होता है, यू नो. लेकिन बाकी जो टेक्निकलिटीज हैं वो दूसरी हैं सीखने के लिए. वो बहुत आपको शो लंबा हो जाएगा उसके लिए. अच्छा, चलो, फेयर इनफ. you're leaving behind a legacy. You have a daughter. आपकी बहुत यंग उम्र में शादी होगी, मैं भी पॉइंट आउट कर दूं. And you have a daughter who's also now singing. She just came up, like you mentioned, sang with, who was it that she sang with? Asim. So what's next for her? अभी मैं इनको कर रहा हूँ, इनके गाने प्रोड्यूस बना रहा हूँ. अच्छा. हाँ, अब वो तो क्या कहते हैं, डंके की चोट पे कहती है कि गाना बनाए पापा. तो मैं कहूँ तुम लोगों के लिए मैं लिखूँ क्या, तुम्हारे मसाइल क्या हैं, ताकि मैं उससे आपसे पूछूँ ना कि यू नो आई रियली नीड टू नो. बिकॉज किसी के लिए गाना लिखना मुझे ये जानना पड़ेगा कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, वो रात को सोते हुए क्या सोचता है, उसकी खुशी क्या है, उसका गम क्या है. सो वो कहता है कि नहीं, हमें बस गाना गाना है. सो अभी उनकी दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर लाइफ, दे डोंट हैव लॉट्स ऑफ, दे हैवंट एक्सपीरियंस अप्स एंड डाउन्स अभी, माशाल्लाह. व्हाट डू यू एंजॉय composing for more? Individual artist हो गए, या कोक स्टूडियो टाइप का प्लेटफॉर्म हो गया, या ड्रामे हो गए? मजा आपको किस चीज में आता है? यार मजा मुझे आता है कि बस जो मैंने बनाया ना, मुझे वो मैंने जब मैं सुन रहा हूँ ना तो मुझे अच्छा लगना चाहिए. आपको अच्छा लगना चाहिए? अगर वो लोगों को अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ पागल है यार, इसको कैसे अच्छा लगेगा. तो मुझे अच्छा लगना चाहिए. तो ऐसा बहुत कम होता है. आपका फेवरेट अपना गाना कौन सा है अब तक? मेरा फेवरेट गाना है मेवड़ा, ओके, बागी and तेरा वो प्यार, नवाज़ शेख मेहरबानी. Okay, these are your 3 favorites. And what's your least favorite गाना of yours? क्या आपको नहीं समझ? मेरे ड्रामे हैं जो मुझे कुछ समझ नहीं आती कि ये कैसे हिट हो गया. वो मेरा पहला OST था जिसमें उन्होंने गाना किसी और सिंगर से गवाना था. तो वो सिंगर अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने कहा था किसी की आवाज़ में गा दो. बिल्कुल वो एक इंडियन सिंगर है अरिजीत, उसका भी ऐसे ही हुआ था कि किसी और ने गाना था तो अरिजीत को खड़ा कर दिया कि तुम गा दो. तो मैंने गा दिया कि वो, मैं गाना भी उसी की टोन में गा दिया. It was the playback singing. तो वो मुझे गाना मशहूर बहुत हुआ बाय द वे. तू भूल गया है याद मेरी, वो बेचारा है ये दिल, तो बेचारा ये कर दिया मैंने. मैं कहा शिट मैन, मैंने क्यों किया ऐसा. तो याद आया. Can you mimic other artists? Because singers are very good at mimicking other singers' styles. मैं मिमिक नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, किसी के स्टाइल में, मतलब गाना
Like for example, कुछ लोग कौन था मेरे साथ कोई हीरो था जो शहजाद रॉय की जो हमारे शो पे आ चुके हैं. शहजाद तो मेरा is my brother. Let's hear you sing him. शहजाद He has a very distinct style. नहीं वो गाता कैसे वो तो नहीं बता सकते, लेकिन शहजाद का आप कॉल करेंगे ना तो शहजाद का फोन आ गया. शहजाद ने खुद फोन किया आपको. शहजाद किधर है यार? बात कर सकता है? हाँ बोल. अच्छा मैं कॉल बैक करता हूँ. ये शहजाद है. तो शहजाद अभी कुछ दिनों पहले एक साथ थे. But I really like it. Do you have a हमारे I really like कि हमारे जो male pop stars and rock stars हैं सबकी बहुत distinct आवाज़ें हैं. आसिम की एक अपना style है. आतिफ stands out. Ali Azmat stood out. Shahzad stands out. Someone I love so much, Junaid Jamshed Saab, he stood out so much. So whose voice do you like the most? I like Atif. I think आतिफ की आवाज़ में एक बहुत ही मुख्तलिफ, पाकिस्तान में कभी ऐसी आवाज़ नहीं पहले सुनी. It's different, right? बल्कि पाकिस्तान भी छोड़ो यार, दुनिया में हमने जितना म्यूजिक हमने आज तक सुना है, ये बहुत डिफरेंट वॉइस थी उसकी. अब पहले कोक होता था, उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग कोलैबोरेट कर रहे थे, लेकिन अब नए लोग आ रहे हैं जिनका अपना एक खास स्टाइल है. And they have their own songs. It's a great generation. Like Abdullah Siddiqui is such a. कितने लोग आए ना? कितने लोग आए? That's because of Hindi music. What do you feel about rap? Rap is great. See, मैं नहीं सुनता, मैं बता चुका हूँ, जॉनरा मुझे कभी इफेक्ट नहीं करता. बात क्या कह रहे हो मैटर करता. Like for example, like the Beatles, Imagine there's no heaven, right? अब वो बात क्या कर रहा है? वो एक पियानो है, वो अलग अलग ट्यून पे गाना गा रहा है. फंकार की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो बात क्या कर रहा है. वो इंपॉर्टेंट होता है. आप कभी भी बीट उससे रिलेट नहीं करते हो, आप सिर्फ वर्डिंग से रिलेट करते हो. रैप इज ऑल अबाउट लिरिक्स मैन. यू सेइंग व्हाट यू फील लाइक सेइंग. सो वो ज्यादा लोगों को रिलेट करता है. तो मैं रैप इसलिए भी शायद सुनूंगा कभी, अगर सुना तो अगर कुछ शायरी मुझे अच्छी समझ में आई. अदरवाइज आई डोंट लिसन टू सॉन्ग्स, आई लिसन टू इंस्ट्रूमेंटल्स मोर. यू लिसन टू इंस्ट्रूमेंट्स. सो जब आप एक गाना सुन रहे होते हैं, पहला दिमाग आपका जहन कहाँ जाता है? लाइक ऑन instruments, on the vocals, on the lyrics, like what's the first thing that clicks for you? The imagination. जिसने ये बनाया है वो क्या सोच रहा है. मुझे उसी जगह पर जाना है, मुझे उसी एरिया में जाना है जहाँ पे वो था. Because म्यूजिक आपको ट्रांसपोर्ट करता है ना. आप चाहे आप लालू खेत में हो, लेकिन आप हैंस जिमर सुन रहे हो तो आप स्पेस में चले जाओगे. That's you go in a trance. That's you what music does. Yeah. तो मैंने ये देखता कि बेस कितना अच्छा बज रहा है, गिटार कितना अच्छा बज रहा है. ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है? ये आपको कहाँ लेके जा रहा है? What's the journey for you? अब हम एक डिजिटल दुनिया में आ गए हैं, तो do you like the idea of having real instruments, या आप कीबोर्ड पे सब कुछ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे? ये कभी हुआ ही नहीं है. ये बड़ी गलत अप्रोच है कि सब कुछ डिजिटल हो रहा है. नहीं, कुछ भी डिजिटल नहीं हो रहा. कितने गाने फुली डिजिटली बनते हैं? नहीं, गाने नहीं बनते हैं. उन गानों की इंजीनियरिंग डिजिटल हो गई है. अच्छा. या पहले तार जोड़ते थे आप पेचकस से, अब तार जोड़ते हैं आप सिर्फ एक क्लिक से. तार जुड़ता जरूर है, उसको जोड़ने का तरीका चेंज हो गया. ओके. सो अभी भी जो काम है वही है, उस काम करने का तरीका मुख्तलिफ हो गया. सो रिक्वायरमेंट्स आर स्टिल द सेम. बट व्हाट अबाउट जो प्रोड्यूसर्स हैं जो फुली एक गाना अपने स्टूडियो में कंपोज करते हैं विदाउट से गिटारिस्ट उनको चाहिए लेकिन उन्होंने पूरी गिटार अपने कीबोर्ड पे कर दी. देखो प्रोड्यूसर्स बहुत हैं, सॉन्ग राइटर्स बहुत कम होते हैं. सो बेसिकली आप जिसकी बात करो वो सॉन्ग राइटर्स होते हैं जो अपने ही थॉट को पेपर पे लाते हैं, गाना लिखते हैं. प्रोड्यूसर क्या होता है कि वो अलग अलग, वो बेसिकली क्यूरेट करता है. किसी और म्यूजिशियन को तुम इधर बैठ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ. उसको ये नहीं पता कि म्यूजिक क्या होता है, लेकिन उसको इतना जरूर पता होता है कि यार अच्छा क्या होता है. समझ रहे हो? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्यूरेटर्स हैं, इनको म्यूजिक प्रोड्यूसर भी कहते हैं, इसको कंपोजर भी, लेकिन कंपोजर नहीं होता. कंपोजर बहुत कम है. खासब नुसरत फ़तेह अली खान was composer, निसार बज़मी साहब was composer, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब was a composer, सुहेल राना साहब was composer. तो हम अब बाहर भी जाओ के देखोगे ना तो कंपोजर अलग होता है, सॉन्ग राइटर अलग होता है, प्रोड्यूसर अलग होता है. प्रोड्यूसर इज समवन हु डज द मिक्सिंग, post production, engineering stuff, right? So yeah, there's the difference. Okay, interesting. That's an interesting because Beatles songwriter band hai. Coldplay, they are songwriters. That's why their music is different. It hits you up. I'm going to take one question from the audience. हाँ जी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. सर मेरा आपसे ये सवाल है कि कोक स्टूडियो में आप बहुत से आइकॉनिक सॉन्ग लेकर आए हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि कौन सा गाना आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है और क्यों है? अल्लाह अकबर. अल्लाह अकबर इज नॉट अ सॉन्ग. बहुत सुनना अल्लाह अकबर. अल्लाह अकबर को सुनो. बहुत बड़ा कनेक्शन है उसमें. Yeah, that's what I like.
Very nice. Look at that. Shuja, we have a game in this show. यूजुअली हम एक्टर्स के साथ खेलते हैं बिकॉज एक्टर्स को आदत है एक दूसरे की आंखों में हर वक्त देखने की और झूठ का रोमांस करने की. आप टीवी देखते हैं घर पे, ड्रामे देखते हैं? आप नहीं देखते तो आपके लिए गेम बहुत मुश्किल होगी. बट लेट्स सी इफ यू कैन गेट दिस. यू हैव टू गेस हुज आईज दीज आर. लगाइए प्लीज. Well, I'm really good at it. Really? Yes. क्या? That's I think Madam Noor Jahan or maybe it's Bushra Ansari. मुझे अस्मा जी लग रही हैं. कौन है जी, दिखाएं. Oh wow! Wow! Dang bro. Next. Oh gosh. ये मेरे ड्रामे का पोस्टर लग रहा है मुझे. जो हीरो ये मुझे लग रहा है फैसल कुरैशी है. Yes, yes. दिखाएं. Yes, ये बशर मोमिन का पोस्टर है. इतना अच्छा ड्रामा था ना वो. अपनी फवाद. This फवाद. दिखाएं. Wow, you're good at this. Okay, next. जावेद शेख. Very nice. सजल. हाँ, ये सज्जल है. ये बड़ी बड़ी ऑड्री हेपबर्न वाली आंखें सज्जल की हो सकती हैं. दिखाएं. Oh no! What? नहीं यार. Yes. ये यहाँ पे थोड़ा सा चीटिंग हो गई है. Oh, very well played. I also thought that was Sajal, but they both have such beautiful eyes. Yeah. शुजा, जाने से पहले आप हमें क्या सुना के जाएंगे? मैं उड़ा गाता हूँ. मैं उड़ा गाना. तुम बताओ कौन सा जो गाना. मैं उड़ा सुना दे. मुझे तू आज़मा जहान से जहां, मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा, निगाह ख्वाब की जुनू है बेपना, है सर किए कहीं ये पर्वत आसमां, मेरे हिसार में है इश्क दायरा, मेरा ये जोश दे सदा, मैं उड़ा मैं उड़ा. Wow! Whenever someone sings really well or something really touches my soul, I get goosebumps. So this gave me goosebumps. This was amazing. Thank you so much. And the lyrics go so well. You really feel like someone's in the air flying and just beautiful. बहुत खूबसूरत गाना. Thank you so much for joining us, Shuja. It's wonderful having you. We've learned so much from you and I hope you guys enjoyed the show. We'll see you next time on After Hours.